Assalamu alaikum to all dear students. I hope you all are very fine and doing good at your home and doing your studies of computer science. So this is your lesson of computer science, and today we will learn what are the different types of accessories we have in a window. विंडो में हमारे पास कौन कौन सी accessories हैं and how we can use them. So let me show you. First of all, when you will click on this option of start button, if you will click on all programs, so as you can see, these all are the folders, right? So the yellow icon basically showing you a symbol of folder. So when you will click on this option of accessories, as you can see, when you will expand this, so accessories basically shows all the materials that you need while you are using a computer. You can use them. Like by default, all these kind of accessories are present in your computer. You can use them. You don't need any kind of software installation if you want to use them. Like अगर आप PowerPoint यूज़ करें तो उसके लिए स्पेशली Microsoft Office आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. इसी तरह से अगर आप ये जो एक्सेसरीज़ हैं ये आपके पास एक तरह से एडिशनल आपको थिंग्स मिलती हैं कंप्यूटर में. यू कैन यूज़ दैम. You don't need any kind of installation if you want to use them. So first of all, let's see what kind of accessories we have in our computer and how we can use them. Because as you all know कि जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हम Microsoft Word पर काम कर रहे हैं. We are working in PowerPoint, in Microsoft Word, whatever. We are working on a lot of things. But we mostly skip this topic. What are accessories? So first of all, as you can see, Bluetooth file transfer. So can anyone tell me what is the function of this Bluetooth file transfer? Fizan, can you tell me? राइट, ब्लूटूथ फाइल ट्रांसफ़र बेसिकली आपके पास एक डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने डाटा को, अपनी डॉक्यूमेंट्स को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम योर कंप्यूटर टू लैपटॉप और फ्रॉम योर कंप्यूटर टू मोबाइल टू योर लैपटॉप और कंप्यूटर, whatever you want to, whatever you have. सो ब्लूटूथ के थ्रू आप अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एंड व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, सो दिस विल आस्क यू ऑप्शन लाइक यू वांट टू सेंड योर फाइल्स और you want to receive your files. So if you want to receive files, then you can click it, and if you want to send files, then you can choose the other option. So right now I'm not going to send or receive any file. I'm just going to show you how these options work. After Bluetooth option, we have the next option, that is your calculator. So as you all know that calculator is the most important tool that works in computer, that is your calculator. When you will click it, so as you can see, there is a small calculator in your computer, in your window. You can use them. You can apply the basic functions, basic operations, and then you can use it. So here as you can see, if you want to do basic calculation in your computer, आपके पास अगर घर में calculator है, you can use them. बट अगर आप इसमें बेसिक कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं उसके लिए भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी यू कैन यूज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर आप कैलकुलेशन में कैलकुलेटर के थ्रू उसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं टू योर प्रॉब्लम, देन यू कैन यूज़ calculator. So as you can see, there are some symbols, there are some numbers, you can use them. We have symbol of we have function of multiplication, division, percentage, mode, and you can use them. Here you will find 2 or 3 options if you want to switch your calculator from standard to scientific, where you will get a lot of options, and mostly you can use it in the metric, how to find sine, cos, the value of tan, etc., and how to find the log. So you can use them in your computer. So there is not any kind of installation. इसमें काम करने के लिए आपको किसी भी किस्म की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. This is by default present in your window. After calculator, we have the third tool, that is your command prompt. So now what is the use of command prompt? And when I will click on this window,
when I will click on this tool, so this kind of interface will appear on your screen. So basically we use command prompt. अगर हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है अपने कंप्यूटर को एडवांस लेवल की, तो वी कैन यूज़ कमांड प्रॉम्प्ट. लाइक इसमें भी हम डिफरेंट फाइल्स को, डिफरेंट फोल्डर्स को ओपन कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली योर कमांड प्रॉम्प्ट. आफ्टर दैट नेक्स्ट वी हैव इज़ योर कनेक्ट टू अ प्रोजेक्टर. Next we have connect to a projector. How we can connect our computer to a projector. हम अपने कंप्यूटर को अपने प्रोजेक्टर के थ्रू, प्रोजेक्टर के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं. यू कैन ईजिली यूज़ दिस ऑप्शन. लाइक आप सबने कंप्यूटर लैब में देखा होगा, व्हेन आई विल कनेक्ट अ प्रोजेक्टर विद माई कंप्यूटर, सो आई कैन यूज़ दिस ऑप्शन. व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, सो एज यू कैन सी कि आपको किस किस्म का जो लेआउट है वो चाहिए. कंप्यूटर ओनली, कि आपके पास जो सिर्फ कंप्यूटर पर आपको शो हो रहा हो डाटा, प्रोजेक्टर पर नहीं. ठीक है. नेक्स्ट है डुप्लीकेट. कंप्यूटर पर भी सेम स्क्रीन आपको शो हो रही हो और प्रोजेक्टर पर भी. आफ्टर दैट एक्सटेंड. एक्सटेंड में क्या करेंगे, हम उसका जो साइज़ है उसको कम कर देंगे. उसका साइज़ को या तो इंक्रीज़ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं. आफ्टर दैट प्रोजेक्टर ओनली, कि हमने सिर्फ अपने कंप्यूटर को प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करना है और हम नहीं चाहते जो हमारे पास लैपटॉप है उस पर हमारी स्क्रीन पर कोई चीज़ शो हो. ठीक है. सिर्फ प्रोजेक्टर पर हमें हमारा डाटा मिल रहा हो. सो इन दिस वे व्हेन यू विल अटैच अ केबल ऑफ प्रोजेक्टर विद योर कंप्यूटर और लैपटॉप, यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर विद योर प्रोजेक्टर. जब आप अपनी केबल अटैच करेंगे प्रोजेक्टर की कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ, सो यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन एंड यू कैन कनेक्ट योर प्रोजेक्टर विद योर computer. After that, the next point we have is getting started. So now what does it mean when I will click this? So as you can see, you will find this kind of interface. So what does it mean? Aman, can you tell me? Right. So basically this tells you how you can perform the basic operations, like आप किस तरह से बेसिक विंडो में रहकर अपना काम कर सकते हैं. अगर आपने ऑनलाइन कोई काम करना है then you can change the size of your screen. साइज़ चेंज करना है, you can use this option, change text size. So इस तरह से आप जो इसका साइज़ है वो आप देखें ये इंक्रीज़ हो रहा है और ये साइज़ कम हो रहा है. ठीक है. सो इस तरह से हम अपनी साइज़ का, स्क्रीन का साइज़ चेंज कर सकते हैं. अगर आप अपनी फाइल्स का बैकअप लेना है देन यू कैन यूज़ दिस ऑप्शन. अगर आपने अपने कंप्यूटर पर किसी और यूज़र को भी ऐड करना है, लाइक समटाइम कुछ कंप्यूटर्स में होता है ऐड यूज़र की ऑप्शन, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ऑप्शन ऑफ ऐड यूज़र. नेक्स्ट वी हैव fifth one is your notepad. Right. So when I will click on this option, so this kind of interface will appear on your screen. So now what is the basic function of notepad? Hania, can you tell me? Right, notepad is basically used if you want to type and edit your documents. Like वैसे तो आप Microsoft Word पर काम कर सकते हैं, बट अगर Microsoft Word या Excel, PowerPoint ये आपके कंप्यूटर में अभी आपने इंस्टॉल नहीं किया, सो यू कैन टाइप योर डॉक्यूमेंट्स हेयर. आप अपने छोटे छोटे नोट्स या डॉक्यूमेंट्स को इधर इजीली टाइप कर सकते हैं. बट इसका एक डिसएडवांटेज है, इट विल नॉट प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ वैरायटी. ये आपको वैरायटी नहीं प्रोवाइड करता, जिसमें आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज, फाइंड, और अपनी फाइल को एट द एंड आप सेव कर सकते हो. So notepad is by default present in every window. You can use them and type and edit your documents. And next point we have is your paint. So this is very interesting. I hope all of you have used it. When I will click on this option, so this kind of interface will appear on your screen. Huzaifa, can you tell me what is the function of paint program? You have studied in class 3, class 4. Can you tell me what is the basic function of this paint program?
राइट। पेंट प्रोग्राम इज़ बेसिकली यूज्ड इफ़ यू वांट टू मेक अ ड्राइंग। अगर आपने किसी किस्म की कोई ड्राइंग करनी है, इफ़ यू वांट टू ड्रा अ ब्यूटीफुल हाउस, अ ब्यूटीफुल सीनरी, अ शेप, any kind of picture, then you can use paint program. As you can see here, we have multiple colors. Here we have a range of colors. You can select any color from them. We have a lot of shapes. हमारे पास बहुत सारी shapes हैं. We have a lot of tools. Then we can use it and we can draw the house or whatever drawing you want to draw it. So in this way we can draw anything in paint program and then we can save the files. और हम अपनी files को easily save कर सकते हैं. So I hope everyone has uses the paint. How we can use paint program. अगर आपने नहीं देखा तो आप paint से related videos भी देख सकते हैं. I will also upload videos so that कि आपने paint की already practice की हो, because this is the basic steps of कंप्यूटर. कि जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं क्लास 1-2 में, तो सबसे पहले आपको पेंट यूज़ करवाया जाता है, बिकॉज इससे आपके माउस की प्रैक्टिस हो कि हमने माउस को किस तरह से यूज़ करना है और किस तरह से हम ड्राइंग कर सकते हैं. राइट. सो दिस व्हाट वी कैन डू इन पेंट प्रोग्राम. सो नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज इट. डोंट सेव. एंड नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट आई हैव. Remote desktop connection. Now what does it mean? Remote desktop connection. Bilal, can you tell me what is the meaning of remote desktop connection? Like desktop तो आपके पास ये स्क्रीन हो गई है, ठीक है. So ये desktop कंप्यूटर भी हो सकता है. So remote desktop कंप्यूटर का क्या मतलब है? Connection. राइट. रिमोट डेस्कटॉप कंप्यूटर, दैट मीन्स कि आप अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को जो कि इस वक्त आपसे दूर पड़ा है या किसी और जगह पर है, उसको इजीली कनेक्ट करवा सकते हो. किसी भी जगह पर उसको बैठकर आप यूज़ कर सकते हो. लाइक अगर मैं इस वक्त ये लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ या इस वक्त ये लैपटॉप कहीं और है, तो मैं उस लैपटॉप को ईज़िली एक्सेस कर सकती हूँ विद द गिवन नंबर और विद द गिवन नेम. मैं उसका, हर कंप्यूटर का एक अपना नंबर होता है, नेटवर्क का नंबर होता है. मैं उसके थ्रू इस कंप्यूटर को इजीली आइडेंटिफाई करवा सकती हूँ और मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ. लाइक अगर मैंने कोई फ़ाइल कॉपी करनी है, कोई फ़ाइल सेंड करनी है, पेस्ट करनी है, सो आई कैन यूज़ दैट कंप्यूटर. एक फासले पे रहकर मैं इस कंप्यूटर को या किसी भी लैपटॉप को मैं ईजिली यूज़ कर सकती हूँ. सो दिस इज़ व्हाट रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन. Okay, so after this option we have the next tool, that is your sound recorder. So now this is very easy, so I think everyone can use. Tell me what is the use of this tool, sound recorder. Abdullah, can you tell me what is the use of sound recorder? राइट. साउंड रिकॉर्डर बेसिकली हम यूज़ करते हैं अगर हमने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करनी है, देन वी कैन यूज़ साउंड रिकॉर्डर. सो वी कैन यूज़ इट वेरी इजीली. हम इसको बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ साउंड रिकॉर्डर एंड वी कैन रिकॉर्ड द साउंड. हम अपनी साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, देन वी कैन सेव द फाइल और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट वीक किसी भी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. सो दिस इज़ साउंड रिकॉर्डर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपनी वॉइस को ऐड करेंगे. और साउंड रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक यूज़ करते हैं साथ में, या आप कोई भी आपके पास जो भी रिकॉर्डर डिवाइस है, यू कैन यूज़ दैट एंड यू कैन record your sound. So when I will click on this option of start recording, so now the recording is started. So simply I will just close it. So they are saying, do you want to save the changes you made in your audio clip or audio file? If you will click on this option of save, तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी आपके कंप्यूटर में, and then you can use it anywhere. तो फिर आप उसको किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं. Next option we have is sync center.
So now what is the full form of sync center? Can anyone tell me? Fizan, can you tell me what is the meaning of sync center, or what is the full form of sync? Right, sync की basically full form है synchronization. And now what is the meaning of synchronization? What is the meaning of synchronization? राइट, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि आप अपनी फाइल को सिंक करवा लेते हैं, उनको एक तरह से स्टोर करवा लेते हैं ऑनलाइन. फॉर एग्जांपल, अगर आप अपना मोबाइल लिया, आपने न्यू मोबाइल लिया और मोबाइल में आपसे आपके सिस्टम पुराने मोबाइल में ऑलरेडी सिंक की ऑप्शन मौजूद थी, तो जैसे ही आप अपनी उसमें ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी और पासवर्ड जीमेल की या कोई भी, जैसे आप इसमें एंटर करेंगे तो जितनी भी डिटेल होगी वो आपकी शो हो जाएगी आपके मोबाइल फ़ोन पर. लाइक अगर आपके कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी सिंक हैं तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे आपने अपनी ईमेल आईडी एंटर की है, पासवर्ड एंटर किया, आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी आपके मोबाइल में शो हो जाएंगे. सो दिस वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ सिंक. सो हम सिंक की मदद से ईजिली ये काम कर सकते हैं और अपने डाटा को, अपनी फाइल्स को ईजिली स्टोर करवा सकते हैं ऑनलाइन. अब जब इजीली स्टोर करवा लेंगे, अब आप किसी और जगह पे हैं, आपके पास मोबाइल नहीं है या लैपटॉप नहीं है, सो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही अपनी ईमेल आईडी या पासवर्ड लिखेंगे किसी भी और कंप्यूटर से, सो ऑटोमेटिकली आप अपने डाटा को यूज़ कर सकते हैं, आप अपने डाटा को रिसीव कर सकते हैं और उसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं. सो सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब है, आप अपने डाटा को ऑनलाइन स्टोर करवा लेते हो. राइट, सो दिस वी कैन डू विद द. So here as you can see you will find multiple options of synchronization. आपने अपने डाटा को सिंक करवाना है या नहीं, और जो आपके सेटअप्स हैं आप उनको भी सिंक करवा सकते हैं. राइट, सो नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज योर Windows Explorer. So now as you can see when I will click, so this kind of interface will appear on your screen. So now what does it mean? Hadia, can you tell me? विंडो एक्सप्लोरर का क्या मतलब है? राइट, विंडो एक्सप्लोरर के मतलब आप अपनी विंडोज़ में जो भी आपकी फ़ाइल्स हैं उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं. तो बेसिकली ये आपके पास डेस्कटॉप के बाद, ये जो आपके पास डेस्कटॉप है, इसके बाद आप इसमें से अपनी फ़ाइल्स को इजीली ओपन कर सकते हैं और अपनी फ़ाइल्स को, फोल्डर को या जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं उनको आप ओपन कर सकते हैं और उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं. दिस यू कैन डन विद द हेल्प ऑफ this we can done with the help of Window Explorer. So after Window Explorer we have the next tool is Windows Mobility Center. Now it's very interesting, Windows Mobility Center. Now what does it mean? Hadia, can you tell me what does it mean, Window Mobility Center? So when I will click on this option, so this kind of interface you will see on the screen. So Windows Mobility Center का मीनिंग क्या है कि आप अपनी विंडोज़ को एडजस्ट कर सकते हो, उसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और उनको जो भी उसमें छोटे छोटे फंक्शंस हैं उनको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन यू कैन यूज़ इट. सो एज यू कैन सी द फर्स्ट ऑप्शन इज़ ब्राइटनेस, डिस्प्ले ब्राइटनेस. सो एज यू विल सी ऑन द स्क्रीन, सो व्हेन आई विल, ब्राइटनेस का मतलब है कि उसमें जो आपके पास है, जो आपकी स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस कितनी है, उसमें कितनी परसेंट आपने वो शो की है ब्राइटनेस. व्हेन राइट नाउ दिस इज़ 32%. व्हेन आई विल इंक्रीज इट, सो एज यू कैन सी नाउ द स्क्रीन इज़ मोर ब्राइट. सो इस तरह से आप अपनी स्क्रीन को ब्राइट कर सकते हैं इफ़ यू वांट, लेकिन अगर ज़्यादा ब्राइट करेंगे सो इट विल नॉट गुड फॉर योर आई साइट ऑल्सो. I will just minimize the number and then if अगर आपको डार्क मोड पसंद है you can also select that one. Simply आपने इसको चेंज करना है and then you can adjust the brightness. Right? So right now I'm going to do this around about 60. After that next we have option of volume. So now volume का क्या मतलब है? What is volume?
राइट वॉल्यूम का मतलब है कि आप उसमें अपना वो जो वॉइस है उसका वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं, कम करना है या ज़्यादा करना है। इसमें भी राइट नाउ इस वक्त मैंने अपना माइक्रोफोन अटैच किया हुआ है, सो मैं इसको कम नहीं करूँगी। सो अगर आप इसको कम करेंगे तो जो आपकी वॉइस होगी वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव द ऑप्शन ऑफ चार्जिंग। सो चार्जिंग से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सिंपली चेक हाउ मच चार्जिंग इज अवेलेबल इन योर कंप्यूटर। इसके अलावा चार्जिंग की ऑप्शन आपको इधर भी मिलेगी इस नोटिफिकेशन एरिया पर। when you will click on this option, so as you can see 45% is available, so this is your 45% available. So this is your symbol of, what is the symbol, इस symbol का क्या function है, हमजा can you tell me? राइट इसका मतलब है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में वाईफाई कनेक्शन अवेलेबल है या नहीं, वायरलेस कनेक्शन। सो अगर वो अवेलेबल है तो यहाँ पर आपको उसके सिग्नल भी शो हो जाएंगे और उसका नेम भी शो हो जाएगा। यू कैन सिंपली चेंज इट इफ़ यू वांट टू स्विच टू अनदर नेटवर्क, देन यू कैन यूज इट। देन वी हैव कनेक्ट डिस्प्ले। लाइक अगर आप इसे कनेक्ट करवाएंगे तो आप प्रोजेक्टर के थ्रू कनेक्ट करवा सकते हैं। प्रोजेक्टर की ऑप्शन आपको इधर भी मिलेगी। यू कैन सिंपली चेंज दिस ऑप्शन ऑल्सो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर सिंक। सो सिंक का भी हमने अभी पढ़ा है कि सिंक क्या करेगा, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको ऑनलाइन स्टोर करवा देगा। ठीक है, आपकी फाइल्स को ऑनलाइन स्टोर करवा देगा और इस तरह से आप अपनी फाइल्स को ईजिली यूज़ कर सकते हैं। दिस यू कैन डन विद द हेल्प ऑफ सिंक। सो सिंक्रोनाइजेशन क्या है, आप अपनी फाइल्स को ऑनलाइन स्टोर करवा सकते हैं अपने नेटवर्क पर और किसी भी टाइम उन फाइल्स को किसी भी जगह से, चाहे आपके पास मोबाइल हो या लैपटॉप हो या नहीं हो, किसी भी जगह से आप इजीली उनको एक्सेस कर सकते हैं। आई होप दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर। व्हाट इज विंडोज मोबिलिटी सेंटर? सिंपली व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट सेट योर ब्राइटनेस ऑफ योर स्क्रीन। आपके पास ब्राइटनेस की ऑप्शन है, चार्जिंग की ऑप्शन है, सो यू कैन सिंपली use these options. Okay, next we have the option of, I think this one is the last one, WordPad. So now what is WordPad? When I will open WordPad, so this kind of interface you will see on your screen. अब WordPad का क्या काम है? What is WordPad? Right, WordPad is basically used if you want to type and edit your documents. अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना है, टाइप करना है, तो आप इजीली ये चेंज इसमें कर सकते हैं। सो दिस यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ WordPad। इसके अलावा हमने देखा था नोटपैड, बट नोटपैड में आपके पास क्या है, इतने फीचर्स नहीं हैं एज कम्पेयर टू WordPad। सो WordPad में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ज़्यादा फीचर्स हैं और नोटपैड में फीचर्स कम है। इसमें आप कर सकते हैं, अगर आपने पिक्चर ऐड करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट वर्डपैड भी प्रेजेंट होता है, टाइम डेट ऐड करना है या अलाइनमेंट सेट करना है, देन यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ वर्डपैड। इज इट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है और वीडियो देखने के बाद आपने करना क्या है, आपने वन बाय वन इन सारे फंक्शंस को यूज़ करके देखना है, ट्राई करके देखना है। लाइक आप कोई फाइल अपने कंप्यूटर से मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू। कैलकुलेटर आपने ऑलरेडी यूज़ किया होगा। कनेक्ट टू अ प्रोजेक्टर, अब आई नो प्रोजेक्टर से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, बट यू विल सी कि आपके कंप्यूटर में इस तरह की ऑप्शन होगी। नोटपैड आप यूज़ कर सकते हैं, पेंट ऑलरेडी किया हुआ है, साउंड अपनी रिकॉर्ड करके चेक कर सकते हैं और इसके अलावा आप वर्डपैड में किसी भी किस्म का कोई चेंज इजीली कर सकते हैं। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। आपने इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना है और वीडियो देखने के बाद ट्राई करना है इन सब फंक्शंस की, इन सब टूल्स की एक दफ़ा प्रैक्टिस करें अपने कंप्यूटर में और प्रैक्टिस करने के बाद देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ होमवर्क और कॉपी वर्क और बुक वर्क। सो ऑल द टॉपिक्स विल बी प्रैक्टिकल। अगर आपने प्रैक्टिकली टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया, सो देयर इज़ नो नीड एनी नीड ऑफ रिटन और कॉपी वर्क। So just watch this video and if you find any difficulty then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom.